This my slide is visible. Hello. Yes, sir, visible. Yeah. Okay, students. Very good morning to all of you. Okay. And after completing my first lecture regarding your diode and SCR, silicon control rectifier, I next today class I want to teach you regarding your MOSFET. Okay, metal oxide semiconductor field effect transistor, and this is also a important role to regulate a system. And here we are I want to teach you regarding how this circuit is MOSFET is designed, and what is the constructional feature of a MOSFET, what is the working principle, and what is the types, the characteristic curve like the output characteristic curve and the transfer characteristic curve. I want to teach in this lecture. Okay, this is our lecture 2. All of you clearly understand uh, the diode part or the SCR part. If you have any doubt, you just mail me, or you just ask me through my personal number. Okay, personal WhatsApp number that is given to you. You just ask me what is your doubt, and where you face some doubts or you can't understand this point, you can clearly mention there, and I will elaborate in the class. Okay, by which other peoples are also encouraged, or other peoples are also understand that part. Okay. And here also the important part factor is characteristic curve, because you in exam you have to remember or understand the characteristic curve of diode, SCR, MOSFET, and IGBT also. But IGBT I will teach you in the later class. Okay. But today class, you also understand the constructional feature of MOSFET, and why MOSFET is used, what is the configuration. Okay, and you specifically remember the characteristic curve and working principle. This is a theoretical part that clearly asked in the BPUT exam, and by which you can write the answers and you will get full marks. Okay, and if you are facing any doubt regarding the working principle, then if you clearly ask me, I will explain you. And before I am going to my lecture, or before I am going to my class, you just put a pen and paper and be ready. What I am telling and what the diagram is showing, you just draw in a pen and paper, and just in a bullet form you just point out. Okay, by pointing out the lecturers, or by pointing out the important point, you clearly understand, or later on when I will share you the videos,
you can easily understand your problems. Okay. And further, if you face some doubt or feel some doubt, then you can clearly ask me. Next slide. Here, what is a MOSFET? MOSFET is a metal oxide semiconductor field effect transistor. Transistor, the name indicates that it acts as a switch. Okay, and why I am using the field effect and why I am using metal oxide semiconductor field effect transistor? You just remember that one: metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, and because we are using to design a MOSFET, we are simply using a silicon material. Also it is used to manufacture the diode, or also it is used to manufacture a SCR. Always a silicon or semiconductor material is used to design a transistor or switch. Okay, then why we are using, or why you are mostly preferable the material silicon? Because it has but it operates with the lower voltage. Okay, and the characteristic curve changes or with the presence of some voltage. That is the condition why we are using some semiconductor material. And here MOSFET, the diagram is given here. It is the diagram structural representation of a MOSFET. You just see here. Okay. This is the MOSFET diagram in which one drain is present, gate and source, and the diode direction is downward. That means the current will flow from drain to source, and P channel MOSFET, the positive current will flow from this, and the this is N channel MOSFET. Means the majority charge carrier of a MOSFET is electron, and here the majority charge carrier of a MOSFET is the holes. Okay, it is also taught in the diode class. But what is the configuration? MOSFET are the tri-terminal devices. Terminal means the end, diode, drain, gate and source. This is the tri-terminal device, and it is unipolar or bipolar. This is a unipolar device, means unidirectional current flow is occurred here. And it is also voltage control. Voltage control means it is operated through a voltage source, not a current source, and its input impedance is very high, by which it can suggested for higher voltage or lower voltage application, or higher voltage or medium voltage application, rather than the use of SCR or diode. Okay, and these devices can be classified into two types. One is your depletion type and another one is your enhancement type. And what is the difference between the depletion type and what is the difference between the enhancement type? I will tell you the points. You just note down the points. Okay, depending on whether they possesses a channel in their default state or no. That means, just you write down, in depletion type or in depletion MOSFET, there is a previously a presence of a N layer occur. What is N layer? I will tell you. Okay, but there is next slide I will explain you what is that. Further, each of them can be either a P channel or N channel devices. I just show you that. I just here. You just clearly everybody visualize this picture or not? This, yes, sir. This picture is visualized? Yes, sir. Okay. Then you just see. आप लोग को इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए? जिसमें चाहिए मैं समझा दूंगा. सर हिंदी. हिंदी में ठीक. हिंदी में ठीक है.
आप लोग को एक बात मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। क्या है, अगर किसी भी चीज में कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना डायरेक्ट से, ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो एक बात सुनिए, अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कुछ आप लोग को पता नहीं है क्या है मॉस्फेट क्या नहीं है। मैं अभी कंस्ट्रक्शनल फीचर बता रहा हूँ आपको कि कंस्ट्रक्शन डिजाइन आप कैसे करेंगे एक मॉस्फेट को। अब मान लीजिए ये एक पी टाइप मटेरियल है, जैसे कि हम लोग डायोड में भी लिए थे पी टाइप मटेरियल। ओके, एंड इन दिस केस ऑल्सो आई एम टेकिंग ए पी टाइप मटेरियल। ओके, सेमीकंडक्टर मटेरियल, बिकॉज पी टाइप में क्या होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है पी टाइप में? कोई तो आंसर दो। पी टाइप में क्या होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर? होल। एंड माइनॉरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। या द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज योर होल एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। मैं क्या करता हूँ, ये मान लो आप पहले जो फिगर में मैं लिया हूँ, ये जो बॉडी है, ये मान लीजिए आपका एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा गया है। उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, दो ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, येलो कलर का, दो क्या किया, दो एन टाइप मटेरियल उसके ऊपर फेंक दिया, मतलब रख दिया उसके ऊपर। पी टाइप मटेरियल है, उसके ऊपर दो एन टाइप मटेरियल उसके ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये जो एक मटेरियल है येलो कलर में जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसमें मेजोरिटी कौन रहेगा? एन टाइप में मेजोरिटी कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। राइट। एंड माइनॉरिटी कौन रहता है? होल। एंड हियर उसका अपोजिट है। तो अभी मैं क्या करूंगा, उसी में थोड़ा थोड़ा, ये एन टाइप तो है ही, उसमें मैं क्या किया, ज्यादा एन टाइप मटेरियल डाल दिया थोड़ा, ठीक है। ज्यादा मतलब बहुत सारा, ये बहुत सारा एन मटेरियल डाल दिया, मैं डोपिंग किया। डोपिंग क्या होता है, मान लीजिए आपका एक बॉडी है, उसके ऊपर मैं क्या किया ना, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव को डालते गया उसी में। ये देखो येलो कलर थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन प्लस, मतलब ज्यादा डोपिंग होने से उसको हम लोग बोलेंगे एन प्लस। अभी अगर मैं पूछूं आप लोग को, ये इलेक्ट्रॉन जो एन एन चैनल है, मींस जो एन सबस्ट्रेट है, ये एक पी टाइप है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो लिया हूं सिलिकॉन का, ठीक है। वो जो क्या है, एन टाइप मटेरियल और एन प्लस में ज्यादा मेजोरिटी चार्ज के लिए किस में है? कोई बोले? एन में ज्यादा है या एन प्लस में ज्यादा है? सर एन प्लस। या क्योंकि एन में एन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक पेयर लेके रख दिया उसमें। अभी मैं क्या करूंगा, उससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसी में बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया इसमें, तो ये क्या हो गया, इसी तरीके से हो गया। तो ये हो गया एन प्लस। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं ये क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट जो एन प्लस चैनल था दो, उसमें क्या किया, मैं दो किला ऐसे ठोक दिया। जैसे कि बोलते हैं ये एक किला है और एक दो किला मैं ठोक दिया। और जैसे कि बॉडी भी एक है, बॉडी में भी एक किला लगा दिया ऐसा, ठीक है। समझ में आया इतना तक? आ रहा है तो? यस सर। यस सर। या अभी जब हुआ ये वाला पार्ट, ये केस, इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूं टर्मिनल, जहां से हम लोग कनेक्शन करेंगे, राइट। ये आपका पास क्या क्या टर्मिनल रहा, एक बॉडी का टर्मिनल रहा, एक सोर्स का टर्मिनल रहा, एक डायोड का टर्मिनल रहा कि नहीं रहा? अभी मेरा क्या एम है, अभी मुझे क्या करना है, मॉस्फेट में करंट को ट्रांसफर, करंट को फ्लो करना है, राइट। अगर आप लोग मान लीजिए, अभी मैं क्या करूंगा, इसमें सोर्स है, ड्रेन है और बॉडी है। बॉडी इस आपका पी टाइप है। और उसके बाद मैं क्या किया हूं, एक सिलिकॉन ऑक्साइड, जैसे कि मॉस्फेट है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, दैट मींस हियर आई एम यूजिंग, मैं क्या कर रहा हूं, एक यूज कर रहा हूं किसको, एक सिलिकॉन ऑक्साइड। यहाँ पर मैं क्या किया, डाल दिया। और ये क्या हो रहा है, ये बॉडी के साथ अभी गेट को अटैच नहीं किया हूं, ये क्या किया है, सिलिकॉन के साथ अटैच कर दिया हूं। समझ में आया इतना तक? हाँ कि नहीं बोलिए?
नो सर, सर वो ग्रीन वाला सिलिकॉन है। क्या बोल रहे हो? लाउड थोड़ा बोलो। सर ये समझ नहीं है थोड़ा गेट वाला। मान लो ये एन है, ये है आपका पी है, यहां तक तो समझ में आया ना? यस सर। तो अभी मैं क्या किया, एक सिलिकॉन ऑक्साइड को लेके यहाँ पर रख दिया, वो प्लेट के ऊपर, पी टाइप के प्लेट के ऊपर, राइट? समझ में यस आया? सर। अभी उसी के ऊपर जो सिलिकॉन मटेरियल रखा, सिलिकॉन ऑक्साइड का मटेरियल रखा, उसी के ऊपर मैं क्या किया, एक किला और एक किला ठोक दिया। मगर वो जो किला ठोका, वो क्या किया, वो इसको कनेक्शन नहीं दिया, मतलब पी टाइप से वो कनेक्ट नहीं है। वो किसके ऊपर बेस है? वो सिलिकॉन के ऊपर, सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑक्साइड के ऊपर बेस है। समझ में आया इतना तक? यस सर। मगर यहाँ पर जो किला था वो डायरेक्टली कनेक्टेड था बॉडी के साथ, एस और डी के साथ कनेक्टेड था। कोई अभी आया क्या? अभी मैं थोड़ा इसी में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो कोई इतना टाइम के बाद कपलेट्स क्यों आ रहे हो तुम? अब मैं क्लास लेते लेते आपको ब्रेक करके मैं इन करता हूँ। ठीक है, आपका क्लियर हुआ? कौन पूछ रहा था? संजय, शायद संजय, आपका क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस। ठीक, ठीक है। अभी मैं और एक थोड़ा सिंप्लीफाई उसको करता हूँ। कहां पर भी डाउट नहीं होगा, कहां पर भी डाउट हुआ आपको पूछना, यहाँ पर, यहाँ से ही समझ के जाओगे आप, डायरेक्ट एग्जाम में उतारोगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट में आता है पूरा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी टाइप का पूरा क्वेश्चन आएगा। पहले डिजाइन कंस्ट्रक्शन समझ जाओ, उसके बाद मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल भी समझा दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये तीनों पार्ट को आपको याद रखना है और आराम से आप समझ जाएंगे ये सब पार्ट। ठीक है, कहां पर भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो आप पूछ लेना डायरेक्ट से, मैं बता दूंगा कहां पर भी। ठीक है, तो अभी मेरा क्या है, मेरा गेट यहाँ पर प्लेस है। अगर मैं बोलूं ये एक इंसुलेटिंग SiO2 है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल, कोई मुझे बता सकता है क्या एक इंसुलेटर का काम क्या है? कोई मुझे बता सकता है? वो करंट को अपोज करेगा या करंट को सपोर्ट करेगा? डेफिनेटली। दैट मीन्स ये अगर मैं करंट, ये रहेगा करंट गेट में रहेगा, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, करंट को, जो करंट रहेगा ये उसके ऊपर ही रहेगा, वो उसको करंट को पास ही करने नहीं देगा, राइट? यस सर। या और एक बात ध्यान, मतलब दिमाग में डाल दो, क्या आपका सभी सोर्स, ये मान लो, ये आप फिक्स नहीं कर सकते, जैसे कि ये सोर्स है, ये ड्रेन है, आप बोलोगे कि ये क्यों सोर्स हुआ, ये क्यों ड्रेन हुआ, कुछ बात नहीं है, आप चेंज कर दो इसको, इधर ड्रेन लगा दो, इधर सोर्स लगा दो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। या इसको रोटेट कर दो तो ये चेंज हो जाएगा। वो इतना ही पॉइंट चाहिए, जैसे कि सोर्स है, गेन है, गेट है, ड्रेन है एंड सबस्ट्रेट है। ठीक है, जैसे कि पी बॉडी है जो ब्लू कलर में है और जो येलो कलर में है। ठीक है, ये सब बॉडी का कलर है और मेरा एक बॉडी पार्ट रहेगा। मतलब मैं बोला था पहले, जब इंट्रोडक्शन में जो मॉस्फेट में जो बोला था, मैं बोला था कि उसमें 3 टर्मिनल रहता है, बोला था कि नहीं? बोला था। क्या क्या बोला था? सोर्स, गेन एंड गेट एंड ड्रेन, ये तीनों ही मैं बोला था, मगर मैं बॉडी का पार्ट वहां पर नहीं बोला था। तो कंफ्यूजिंग फिर हुआ कि आप तो सर बोल रहे हैं कि तीन तीन पार्ट है, ट्राई टर्मिनल आप बोल रहे हैं, फिर बॉडी को क्यों आप फिर एक मेंशन करके, तो ये एक टर्मिनल हो गया ना, हुआ कि नहीं? ये एक टर्मिनल। मगर आप क्या करेंगे, जब एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा कि मॉस्फेट कितना टर्मिनल का होता है, आप बोलेंगे 3 टर्मिनल का होता है। वहां पर था एक सोर्स, वहां गेट एंड ड्रेन, और जो निचले वाला पार्ट है जहां पर सोर्स और सबस्ट्रेट और बॉडी है, वो क्या करता है, वो है सोर्स के साथ इंटरनली कनेक्ट होता है। दैट मीन्स आप मान सकते हैं कि सोर्स में जितना रहेगा सबस्ट्रेट में भी उतना रहेगा, उसी के बाद उसको ग्राउंड करते हैं, इसीलिए ये पार्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, मगर पिक्चोरियल और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको दिया गया है एंड ग्राउंडिंग पार्ट को भी मैं दिखा दिया हूं इधर।
वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। समझ में आया ये पार्ट? कंस्ट्रक्शन में अभी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन पार्ट मेरा खत्म हुआ, मैं अभी जाऊंगा वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो मुझे प्रोसीड करने के लिए बोलिए, मैं प्रोसीड कर जाऊंगा। प्रोसीड सर। क्लियर हो गया कंस्ट्रक्शन? यस सर। देन अभी मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनना अभी, ठीक है? ध्यान से अगर आप लोग सुनते हैं तो देखते भी हैं मैं यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर जो था ये आपका था, ये आपका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एनहांसमेंट मॉस्फेट, और उसको क्यों एनहांसमेंट में मॉस्फेट में बोल रहा हूँ ये भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है? आपको एक बात मैं बोलता हूँ, जे पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होता है आपका होल, माइनॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन, एंड इधर उसका अपोजिट होता है, राइट? सर या सर आपका साउंड थोड़ा कम आ रहा है। अभी आया साउंड? यस सर, भाई अभी कम आ रहा अभी है। अभी भी कम आ रहा है? यस सर। बाकी बाकी लोगों का? तो मेरे को तो ठीक आ रहा है। आपको ठीक आ रहा है? आप कौन पूछ रहे थे किसके साउंड कम आ रहे हैं? कपिलेश, यस सर। आप थोड़ा साउंड बढ़ाइए आपका सर मेरा लैपटॉप या फुल है। किसमें। तो बाकी लोगों को तो ठीक आ रहा है, और बाकी लोगों का साउंड अगर कम आ रहा है कि मुझे बोल सकते हैं, मैं मेरा तो ठीक है, मेरा तो साउंड पूरा दिया गया है। हाँ सर, से कपिल बस और साउंड आ रहा संजय आपका आ रहा है? तो नहीं, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है तो ठीक है। अभी मैं प्रोसीड करता हूँ। कपिलेश थोड़ा आप देखिए कहाँ पर आपका प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को तो आ रहा है। मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो को भी शेयर कर दूंगा, आप दूसरी बार भी सुन लेना, अगर डाउट होता तो फिर पूछ लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यस सर। या अभी क्या होता है, ये ई टाइप मॉस्फेट में थोड़ा कंस्ट्रक्शन में बता देता हूँ पहले। आपका सिमिलर टाइप मॉस्फेट जो है वो उसी टाइप का होगा, मगर यहाँ पर कैसे करंट, अगर मैं मान लीजिए ये आपका है, ये आपका कंस्ट्रक्शन फीचर है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स में डाल दिया, जैसे कि मैं बोलता हूँ पॉजिटिव वोल्टेज डाला। VGS का मतलब समझ रहे हैं सब लोग? VGS मतलब यहाँ पर गेट करंट, और गेट गेट के अक्रॉस जो करंट होगा वो रहेगा पॉजिटिव, ठीक है? और सोर्स के अक्रॉस जो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव, ठीक है? अभी मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस में मैं वोल्टेज दे दिया। अभी VDS के अक्रॉस में भी मैं क्या किया, करंट को उसको बढ़ाया, ठीक? अभी मेरा क्या है, अभी जो बढ़ते जाएगा ये आपका रहा, यहाँ पर लेयर कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ लेयर नहीं था। अगर मेरा करंट में यहाँ पर सोर्स से ड्रेन को मैं फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है, तो करंट जाएगा क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना। ये आपका एक एन टाइप मटेरियल है, यहाँ पर भी एक एन टाइप मटेरियल है, इसके बीच कुछ कनेक्शन नहीं है। तो करंट अगर मेरा जाता है, यहाँ से करंट गया 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 इधर, इधर अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ, ये करंट गया गया गया, उसके बाद यहाँ पर जाएगा क्या? ये पाथ ही नहीं है उसमें, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? मैं अभी वर्किंग प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। जिस तरीके से मॉस्फेट था उसी तरीके का मॉस्फेट है, ठीक है? मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज सिर्फ वोल्टेज सोर्स को मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर। यस सर, यस सर। तो, तो आपका कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मान लो
कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एन था, यहाँ पर एन था। अगर मेरा यहाँ पर उसी टाइप का मटेरियल का कुछ पाथ नहीं रहेगा और चैनल नहीं रहेगा, करंट जाके यहाँ से आया मगर यहाँ से तो पास नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, अभी मेरा क्या है, मेरा ये सोर्स जो वोल्टेज है ये मेरा क्या है, ये मेरा इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज को मैं बढ़ाऊंगा, VGS को मैं बढ़ाऊंगा, ये क्या करेगा, VGS का पॉजिटिव आ रहा है या क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, हाँ कि नहीं, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव आके सब यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पर। तो रुकने के बाद वो क्या होगा, फिर मैं VGS को कुछ लिमिट तक बढ़ा सकता हूं, मगर VGS जब मैं बढ़ा रहा हूं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज उतना ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आप 3 पार्ट में VGS को पहले पार्ट में लिखिए आप पेन एंड पेपर में, VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट लिखे आप, VGS इक्वल टू 0 वोल्ट। सबको ही लिखे तो पेन एंड पेपर में, ये है आपका केस 1, राइट। आगे VGS ये हुआ आपका 0 वोल्ट, तो यहां पर क्या रहेगा करंट, कोई मुझे बोले यहां पर करंट क्या रहेगा, जल्दी से बोलो। यहां पर शॉर्ट सर्किट, 0 वोल्ट मतलब क्या है, शॉर्ट है, तो करंट क्या रहेगा यहां पर, कोई रिस्पॉन्ड करता है या मैं ही बोलूं आंसर। सर मैक्सिमम करंट जाएगा वहां से। यहाँ पर अगर मेरा VGS वोल्टेज ही नहीं रहा, ये शॉर्ट है, यहाँ से तो करंट अंदर नहीं जाएगा, जा सकता है क्या अंदर, नो सर। नहीं जाएगा क्योंकि इंसुलेटिंग है, राइट। तो अभी क्या करूंगा, 0 वोल्टेज में मेरा यहाँ पर करंट ही नहीं गया। अगर मेरा नेगेटिव वोल्टेज देता हूं, यहाँ पर करंट जाएगा क्या, जाएगा या नहीं जाएगा, बोलिए आप। नहीं जाएगा सर। तो अगर यहाँ पर मेरा करंट नहीं जा रहा है, तो 0 वोल्टेज में वो करंट क्या होगा, मतलब ड्रेन के क्रॉस जो करंट होगा, यहाँ पर अगर मैं 0 देता हूं पहले, तो करंट क्या रहेगा, यहाँ पर पहले 0 रहेगा। अभी मैं क्या किया हूं, VGS को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव में भी करंट जाएगा या नहीं जाएगा, नेगेटिव में यहाँ पर कितना करंट रहेगा, नेगेटिव करंट रहेगा। नेगेटिव वोल्टेज अगर दे रहा हूं, यहाँ पर नेगेटिव करंट रहेगा कि नहीं, यहाँ पर पोलैरिटी क्या रहेगा, नेगेटिव 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 ऐसा रहेगा, हाँ कि नहीं। यस सर। Yes. तो अगर मेरा यहाँ पर नेगेटिव रहा, तो यहाँ पर मेजोरिटी कौन था, पी टाइप में Holes. होल्स था। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, Yes. Yes. अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, होल का पाथ बन जाएगा, मगर यहाँ पर मेरा मटेरियल क्या है, नेगेटिव मटेरियल है, यहाँ पर मेजोरिटी एन चैनल मटेरियल है, हाँ कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पर भी लेयर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूं, अभी दूसरे में पार्ट में चला आता हूं, जहां पर भी कि मैं VGS, ये केस 3 है, मैं 0 लिया, उसके बाद नेगेटिव लिया VGS का वोल्टेज को, उसके बाद अभी मेरा VGS का वोल्टेज में क्या कर रहा हूं, बढ़ा दे रहा हूं, पॉजिटिव कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये वोल्टेज यहाँ पर पोलैरिटी क्या रहेगा, सब में यहाँ पर Positive. पॉजिटिव रहेगा। अब अगर मेरा यहाँ पर पॉजिटिव रहा पोलैरिटी, तो इसका ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, सर ये बॉडी का नेगेटिव चार्ज कैसे नहीं बॉडी में नेगेटिव रहता है, नहीं रहता है, मैं बोला ना बॉडी में माइनॉरिटी रहते हैं। हाँ मेजोरिटी था, माइनॉरिटी तो कुछ था ना कैरियर उसका, हाँ सर, उसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ माइनॉरिटी कैरियर को अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव अपर साइड में है, तो माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन था उसको ये अट्रैक्ट करके करेगा, डेफिनेटली करेगा। अगर मेरा गेट वोल्टेज देता हूँ पॉजिटिव, तो ठीक है सर। हाँ तो अगर मेरा गेट वोल्टेज पॉजिटिव दिया, तो ये क्या हो गया, ये एन को ये एन क्या किया, कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरा नेगेटिव अक्यूमुलेट होते गया कुछ ही टाइम के बाद VGS में अगर ज्यादा अप्लाई करूंगा, यहाँ पर एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं,
यस सर। अगर मेरा लेयर फॉर्मेशन हो गया, अभी मैं करंट उसमें बीटीएस के थ्रू पास करूंगा। अभी करंट पास होगा कि नहीं, मुझे आप लोग बताइए। यस सर, होगा। क्यों होगा, अभी मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। मान लीजिए ये आपका हुआ, कहाँ है, रुक दो एक सेकेंड। हाँ ठीक है, VDS है। अगर मेरा ये VDS है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है कि नहीं, बोलो। VDS में इस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है कि नहीं। यस सर। यस तो सर। अगर मेरा मेरा ये बॉडी कौन था, ये जो पार्ट कौन सा था, एन था। नेगेटिव, हाँ। एन था, मेजोरिटी इसमें कौन था, इलेक्ट्रॉन। यस सर। इलेक्ट्रॉन था ना। हाँ तो सर। अभी ये क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन को, यस सर। करेगा। नेगेटिव क्या करेगा, इस साइड नेगेटिव ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको पुश करेगा। रिपेयर। हाँ पुश करेगा इधर, मतलब इस साइड से, एस साइड से इलेक्ट्रॉन पुश किया, वो जाएगा डी के साइड में, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। मेरा जो रेड लाइट जहां से जा रहा है, यहाँ से सोर्स से ड्रेन की तरफ से जा रहा है, सोर्स से ड्रेन, सोर्स से ड्रेन, सोर्स से ड्रेन, ऐसे जा रहा है, ठीक है। जितना मैं वोल्टेज जितने मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा, तो मेरा सोर्स से ड्रेन का इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ही बढ़ते जाएगा, राइट। यस सर। तो अभी मैं अगर पूछूंगा आप लोग से, जब मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इधर जा रहा है, तो अभी मेरा क्या होगा करंट का पाथ। क्लॉकवाइज। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन East-west। जहां से, हाँ इलेक्ट्रॉन जहां से जा रहा है जिसी पाथ में, उसका अपोजिट डायरेक्शन में उसका करंट का पाथ रहेगा। अंडरस्टैंड, दैट मीन्स करंट आपका आईडी करंट डी से एस तक जाएगा। समझ में आया। यस सर। अगर आप लोगों का यहाँ पर करंट कैसे पास किया, डी से एस तक पास किया, मगर अगर डी से आप लोग का पास किया इधर, तो आपका करंट का फ्लो रहेगा डी से एस तक, राइट। वो कब कब हुआ, जब आप लोग पॉजिटिव गेट वोल्टेज दिए, तभी ये करंट आपका पास किया, हाँ कि नहीं। यस सर। ये पार्ट आपका सबका क्लियर हुआ। यस सर। क्या था, कोई मुझे समझा सकता है। 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया। केस 1 में 0 वोल्टेज लिया, गेट वोल्टेज, ठीक है। केस 1 में मैं 0 वोल्टेज लिया। 0 वोल्टेज में वो चैनल फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, राइट। सबको समझ में आया ये वाला पार्ट, आया तो। यस सर। अभी मैं नेगेटिव वोल्टेज दे रहा हूं। नेगेटिव वोल्टेज में क्या करूंगा, नेगेटिव वोल्टेज में भी वो क्या करेगा, होल्स को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अट्रैक्ट करेगा। वहां पर क्या होगा, करंट का और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं हो सकता है। अभी मैं उसका फ्लो को चेंज कर लिया, चेंज करके क्या दिया, पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव में क्या होता है, वो जो पी टाइप में जो माइनॉरिटी बॉडीज था इलेक्ट्रॉन, उसको क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो उसको अट्रैक्ट करने से वहां पर एक एन चैनल फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर जो दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैं ड्रेन और VDC अप्लाई करता हूं, जहां पर कि डी साइड का वोल्टेज और बी साइड का करंट पॉजिटिव होता है, तो वो क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। तो इसी हिसाब से जितना आप VDC बढ़ाते जाओगे, उसी हिसाब से ये करंट फ्लो करता जाएगा, करता जाएगा, करंट बढ़ता भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ एनहांसमेंट मॉस्फेट। ये क्या था एनहांसमेंट मॉस्फेट में, एनहांसमेंट मॉस्फेट पे जो चैनल था उसको हम लोग फॉर्मुलेट किए, ठीक है। ये वाला चैनल को हम लोग बनाए, कैसे, आप लोग वोल्टेज दे के, आप लोग, इसलिए आप इसको बोलते हैं एनहांसमेंट मॉस्फेट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वोल्टेज दे के ये चैनल को बनाए। मगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी मॉस्फेट,
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वाला पार्ट को, ये वाला चैनल, ये वाला सेमी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मगर यहाँ पर रहेगा क्या, यहाँ पर पहले से ही एक चैनल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो चैनल रहता है ये पहले से ही रहता है, इसको कॉन्स्ट्रक्शनली ऐसे ही बनाया गया है। अगर मैं इसको ऐसा ही बनाता हूँ तो वो क्या होगा, मेरा एडिशनल वोल्टेज सोर्स नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर जो एन को अटैच किया था, अभी वो क्या करेगा, इसका पाथ को ऐसा ही रहने देगा, मतलब ऐसा ही पहले से कंस्ट्रक्शनल रहा। डीमॉस्फेट और रीमॉस्फेट में समझ में आया डिफरेंस क्या था, कोई मुझे समझाया? सर डी मॉस्फेट में सर गेट का कोई रोल नहीं। समझ में नहीं, जोर से बोलो थोड़ा। सर डी मॉस्फेट में सर गेट का कोई रोल नहीं है इसमें, होगा ना? तो पहले से ये दोनों नहीं, एस और डी प्रेजेंट है। नहीं, डी मॉस्फेट और ई मॉस्फेट में गेट का रोल है। मैं डायग्राम में सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा ही था पहले से, फिर मैं दूंगा, मैं उसमें वोल्टेज भी सिमिलर टाइप का, सबका वोल्टेज फ्लो सेम ही रहेगा। किस तरीके से रहेगा, जैसे कि VGS रहेगा 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रहेगा, मगर इसका कंस्ट्रक्शनल फिगर ऐसा रहा है कि जैसे एन चैनल देखो पहले से ही कनेक्टेड है इसमें, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी गेट वोल्टेजेस, मेरा एन चैनल मॉस्फेट ऑलरेडी उसमें है, मतलब एन चैनल ऑलरेडी फॉर्मेशन होके ही है। मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है गेट सोर्स उसको फॉर्मुलेट करने के लिए। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी मैं उसको समझाऊंगा कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहेगा। ई वाला पार्ट में कुछ डाउट नहीं रहा, तो ई वाला पार्ट पूरा क्लियर हुआ आप सबका? यस सर। तो अभी क्या करता हूं, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ये है, अभी मेरा क्या किया, यहाँ पर ये GS तो मेरा 0 ही है, पहले कंडीशन में मेरा 0 है। अभी मैं VDS को मैं बढ़ाते जाऊंगा तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कोई बोलो आंसर। मेरा यहाँ पर VGS 0 है, मैं अभी VDS को मैं फ्लो करूंगा, ऑन करूंगा इसको, ये करंट जाएगा या नहीं जाएगा इसमें? सर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से एन चैनल है, इसीलिए मेरा करंट उसमें पास करेगा। सिमिलर प्रोसीजर, पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इस साइड से ड्रेन उसको अट्रैक्ट करेगा, सोर्स साइड से उसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा ही रहेगा, कहां से कहां, सोर्स से ड्रेन तक रहेगा, सिमिलर कंडीशन रहेगा। ठीक है, मगर ये जब रहेगा इसी तरीके से फ्लो रहेगा तो कुछ ही देर के बाद वो क्या होगा, इसी टाइप का फ्लो रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर मेरा 15 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया? यहाँ पर मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। मैं अभी एक वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होके जाएगा, राइट? फिर और एक वोल्टेज बढ़ाऊंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर और एक वोल्टेज बढ़ाऊंगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया। इसी टाइप का मैं जितना तक बढ़ाते जाऊंगा, मैक्सिमम कितना तक बढ़ा सकता हूँ, 15 तक ही बढ़ाऊंगा वोल्टेज, तो 15 इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट? अभी अगर मेरा 15 इलेक्ट्रॉन इसके साथ अट्रैक्ट हो गया तो अभी मैं 16 वोल्टेज जब दूंगा, 16 वोल्टेज दूंगा, 16 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन तो अभी नहीं है इसमें, तो वो क्या करेगा, करंट का फ्लो उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही मूव करते जाएगा, जितना भी वोल्टेज बढ़ाओ करंट का फ्लो उतना ही रहेगा, हाँ कि नहीं? यस सर। तो उसका ग्राफ में बताऊंगा, उसमें ग्राफ में बताऊंगा कि कैसे उसका ग्राफ बनेगा। अगर मेरा मान लो मैं वोल्टेज अभी बढ़ाता गया, ठीक है, अभी और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या करेगा, करंट जाके, मतलब वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, और लास्ट में क्या होगा, वोल्टेज अभी मैं बढ़ाऊंगा, करंट और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको मैं मूव कर सकूं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, करंट जाके कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर बाद। समझ में आया? इसको बोलते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है,
मैं वोल्टेज अभी बढ़ाया, मतलब आप मान लीजिए VGS जब दे रहा हूं और VGS जब 0 वोल्ट है, करंट उसमें मैक्सिमम रहेगा, फ्लो करेगा, राइट। यस सर। अभी आपका सेकेंड कंडीशन में आया। सेकेंड कंडीशन में मैं क्या दिया, VGS में यहां पर क्या किया, नेगेटिव करंट सप्लाई किया। तो नेगेटिव करंट में अगर सप्लाई करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव 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 रहेगा यहाँ पर जी में। तो अगर मेरा यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव रहा, ये नेगेटिव जो इधर है चैनल, उसको ये अपोज करेगा या अट्रैक्ट करेगा? सर अपोज करेगा। तो अपोज करेगा तो ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दूर चला जाएगा। तो ये जो पी चैनल में जो पॉजिटिव होल्स होगा वो ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो अगर मेरा ये ऊपर चला गया तो ये क्या होगा, वोल्टेज जो करंट का फ्लो को बढ़ाएगा या घटाएगा? सर हटा देगा सर। करंट का फ्लो अगर डिक्रीज करेगा तो ये चैनल का क्या होगा, धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज बढ़ता जाएगा, हाँ कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटली चैनल ओमिट हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर मेरा नेगेटिव था, ये पी टाइप से अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव 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 अट्रैक्ट करते 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 जग गया। तो ये चैनल का फॉर्मेशन धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 स्क्वीज होते 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 पूरा न्यारा हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर नैरो हो गया, धीरे 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 नैरो हो गया, तो ये वाला करंट इधर कैसे जाएगा? यहाँ पर ज्यादा था बोल के तो ये वाला करंट इधर जा रहा था ना। अगर मेरा यहाँ पर ज्यादा स्पेस ही नहीं रहेगा, उसको ये बंद कर देगा, तो करंट कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। यस सर। समझ में आया ये वाला पार्ट? हाँ सर। तो अभी मेरा क्या किया हूँ, पहले से वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है, अभी मैं VGS को मैं क्या किया हूँ, पॉजिटिव कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा। तो अभी क्या करेगा, ये पॉजिटिव आपका आया इधर, ये क्या होगा, पॉजिटिव के चक्कर में जो पी टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था इलेक्ट्रॉन, वो उसको क्या करेगा, ये वाला लेंथ को थोड़ा बढ़ाएगा। मतलब ये वाला जो गैप है जहां पर चैनल फॉर्मेशन हुआ था, एन चैनल फॉर्मेशन हुआ था, वो वाला गैप को थोड़ा बढ़ा देगा। तो करंट क्या करेगा, इजीली फ्लो करेगा, उसका स्पीड करंट फ्लो करेगा। और करंट का वैल्यू अगर मैं वोल्टेज को मैं बढ़ाते जाऊंगा और VGS को अगर मैं तो उसी में बढ़ाते जाऊंगा, तो क्या करेगा, करंट का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। जाए कि नहीं जाएगा? यस सर। ठीक है, जाएगा। अभी मुझे बोलो डी मॉस्फेट और वी मॉस्फेट में क्या डाउट रहा आपका? अभी मैं ग्राफ को जाऊंगा, नहीं तो आपका डाउट क्लियर करूंगा इसमें। मुझे बोलो डी मॉस्फेट और ई मॉस्फेट में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर डाउट है तो पूछ लो। ये वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, आप देख लेना, मेरे बात को रिपीटेड करके सुन लेना तो हो जाएगा। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, इसका डाउट है तो बोलता हूँ। कौन से भी पॉइंट में, वर्किंग प्रिंसिपल में है या नहीं? बोलो जल्दी, टाइम कंप्लीट हो रहा है, जल्दी बोलो। नहीं है, जा रहा हूं फिर नेक्स्ट में। यस सर। देखो अभी ग्राफ में मैं आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो मान लो आपका है VGS है। मैं पहले के केस में क्या बोला था, VGS में क्या बोला था, VGS अगर 0 रहेगा डी मॉस्फेट में तो आपका करंट कितना रहता है, मैक्सिमम रहा था उसी टाइम में। तो पहले क्या होता है, VDS को मैं बढ़ाता गया VDS को मैं यहाँ पर बढ़ाता गया, तो करंट भी धीरे 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 बढ़ के जाके एक टाइम में पूरा कांस्टेंट हो गया। तो उसी टाइप का अगर मैं बोल दूंगा VGS को मैं नेगेटिव किया तो करंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पर एन चैनल का वो एन चैनल धीरे धीरे वैनिश होते जाएगा। तो मेरा एन चैनल अगर वैनिश करते गया तो वो कुछ टाइम के बाद और मान लो आपका 5 इलेक्ट्रॉन उसमें है चैनल में,
मेरा ये क्या क्या नेगेटिव जो डाला वो 5 इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर के स्ट्रक्चर में, तो वहां पर क्या होगा, वो एन चैनल पूरा घट जाएगा। तो अगर वो एन चैनल पूरा घट जाता है तो 6 के वोल्टेज में वो क्या होगा, वो एन चैनल नहीं रहेगा, करंट फ्लो बंद हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं, अगर मैं VDS को भी बढ़ाता हूँ, VGS अगर नेगेटिव है तो करंट का मतलब करंट का प्रभाव क्या रहेगा, 0 रहेगा। मान देखो यहाँ पर अगर मेरा VGS -6 वोल्ट है इधर, तो करंट क्या है, 0 है। तो सिमिलरली ये क्या होगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर गेट वोल्टेज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो वो एन चैनल को मोटा करते जाएगा, और अगर एन चैनल मोटा होते 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 गया तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। समझ में आया इतना तक? ये डी मॉस्फेट का मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया? यस सर। तो अगर मेरा करंट उसको एनहांस करता है, करंट का वैल्यू एनहांस करता है, तो उसको बोलेंगे एनहांसमेंट रीजियन, जहां पर गेट वोल्टेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जो गेट वोल्टेज उसको रिपेल करेगा तो उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजियन, बिकॉज वो नेगेटिव को डिप्लीट करता है, वो अट्रैक्ट नहीं करता है, डिप्लीट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन रीजियन। और जहां पर जितना वैल्यू में नेगेटिव वोल्टेज में वो क्या करता है, करंट का वैल्यू को स्टॉप कर देता है और करंट पास ही नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिच वोल्टेज। ये आपका रहा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसी को अगर मैं थोड़ा रिप्रेजेंट इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोल देता हूँ, उसको थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कैसे करूंगा। ये आपका कितना था, -6 वोल्टेज, ये जो गेट वोल्टेज -6 में क्या कितना करंट रहा, मतलब ये रहेगा गेट वोल्टेज एंड करंट को ग्राफ को बोलते हैं आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ड्रेन वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज यहाँ करंट का वोल्टेज को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। रिलेशन क्या है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में, आप लोग किसको किसको लेंगे, गेट वोल्टेज एंड ID। यहाँ पर क्या लेंगे, ड्रेन वोल्टेज एंड ID। यहाँ पर देखो 6 वोल्टेज में 6 वोल्ट में कितना रहा, 6 वोल्टेज में करंट रहा 0। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, करंट वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा तो करंट का वैल्यू भी धीरे धीरे देखो -5 -4 -3 -2, करंट का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ता गया, तो यहाँ पर बढ़ता गया। जब VGS इक्वल टू 0 हो जाएगा तो करंट का वैल्यू वहां पर मैक्सिमम रहेगा, मतलब मैक्सिमम मतलब क्या रहेगा, वो उसको बोलते हैं स्टेज, मतलब उसका लिमिट ही उतना है। और अगर उसके बाद आप लोग गेन का वोल्टेज फर्दर बढ़ाते हैं तो करंट का वैल्यू तभी आ जाएगा प्लस में और पॉजिटिव में आ जाएगा और ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक स्लोप की तरह हुआ कि नहीं। तो अगर मेरा इस सब पॉइंट को करंट का वैल्यू को जो कनेक्शन करते 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 जाऊंगा तो ये वाला कर्व ही आएगा। इसको डायरेक्टली मैं अगर ऐसे ऐसा ऐसा सब वाला पॉइंट, इसको एक पॉइंट रहा, ये एक पॉइंट रहा, ये एक पॉइंट रहा, ये एक पॉइंट रहा, सबको मैं कनेक्शन करते जाऊंगा तो ये रहेगा एक स्लोप की तरफ से बनेगा। इसको मैं बोलता हूँ डी मॉस्फेट का कर्व। ई मॉस्फेट का भी उसी तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। ये क्लास इतना ही रहा। अगर आपका कुछ डाउट रहा तो आप मुझे पूछ लीजिए, नहीं तो मैं क्लास स्टॉप करूंगा। पूछिए किसका अगर कुछ डाउट रहा तो। है या नहीं? एवरीबॉडी? No, sir. ओके देन, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास मंडे है, मंडे नहीं शायद ट्यूसडे होगा, राइट? ट्यूसडे है ना मेरा क्लास में? यस सर। हाँ, आज है लैब क्लास है मशीन का, ठीक है। तो मैं उसका डेमो दे दूंगा आज क्लास में, तो ये वाला पार्ट भी मशीन का आज डेमो दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास से एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट? यस सर। ओके देन, थैंक यू।
दीपेश चौधरी।